So I'll start with last lecture for today. That is your lecture number 33. Today it is your lime manufacture. Okay. So lecture 33 is lime manufacture and figure number is 2K3 and page number you can open on Dryden 233. So you are 233, that is lime you are manufacturing, and you can see the starting material is limestone, and finally you are getting the slicked lime. So you can open the page number 233 in your books. And so it is given the hydrated lime process, and quick lime process given, and your hydrated lime process is given. So this much for so lime flow sheet is on page number 233, and other things you can find on page number 230, 231, 232, and 234. Up to 234 you have. So first you can see the pertinent property of lime. Uh, Physical properties. Calcium oxide is your quicklime. So molecular weight is 56, melting 70, boiling point is 2850 degrees Celsius, density is 3.3, and it is soluble in water and acids. And second is your calcium hydroxide, that is your slicked lime. So its molecular weight is 74, hydrated or slicked lime. So its molecular weight is 74.1, density is 2.2 gram per cc, and decomposition to calcium oxide takes place at 5 degrees Celsius, and it is slightly soluble in water, and grades are given. Uh, so first it is saying that commercial lime has mixtures with magnesium oxide or MgOH whole twice. Okay. So you will have it is not 100% commercial lime is not 100% calcium oxide or calcium hydroxide, but mixtures with MgO and or magnesium hydroxide. And quicklime, you have two grades. It is high magnesium and low magnesium and dolomitic. So high magnesium, high calcium. High calcium, you have greater than 90% calcium oxide, quicklime, and low magnesium, you have 5 to 25% magnesium oxide, and dolomitic, you have dolomitic, you have 25 to 40% magnesium oxide. Next, other is hydraulic lime and slicked lime, that is calcium hydroxide plus MgO, MgOH whole twice in varying percentage. Okay. So every time there is always a mixture of magnesium oxide and magnesium hydroxide in your slicked lime and quicklime. Okay. So that's the availability of your lime. Next is consumption pattern. So where is lime used? Lime is used as a basic flux in the manufacture of steel. And silicon dioxide is a common impurity in iron ore which cannot be melted unless it combines with another substance, first to convert it into a more fluid lava called slag. So silicon dioxide is a Lewis acid, therefore it reacts with Lewis base lime. तो आपको मतलब ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होती है impurity,
वो आपको रिमूव करनी होती है, और ये आपका स्लैग बना देता है कैल्शियम ऑक्साइड। CaO प्लस SiO2 फॉर्म्स CaSiO3। तो molten silicate slag is less dense than the molten iron and collects at the top of the reactor where it can be drawn off। तो सिलिका जो इसकी डेंसिटी है वो कम होती है और ऊपर कलेक्ट हो जाता है, और मोल्टन आयरन के लिए, और जो है ये, और इसकी क्वांटिटी दी हुई है, और 100 lbs ऑफ लाइम मस्ट यूज टू मैन्युफैक्चर अ टन ऑफ स्टील। तो बेसिकली स्टील के मैन्युफैक्चर में ये आपका सिलिका के साथ, सिलिका डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके स्लैग बनता है। और ये आपने स्लैग तो पढ़ा ही होगा काफी। और बाकी ये काफी जगह यूज होता है, बेसिक मटेरियल में आपने वैसे भी पढ़ा होगा, और बहुत इसका ज्यादा यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में, इसका काफी यूज होता है। आपका क्विक लाइम है और ट्रीटेड और स्लिकेड लाइम है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो प्रोसेसेस कैल्साइनिंग लाइमस्टोन टू यील्ड क्विक लाइम, सेकेंड इज हाइड्रेशन ऑफ क्विक लाइम। तो पहले जो है कैल्साइनिंग करते हैं लाइमस्टोन की। कैल्साइनिंग मतलब आप लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको ट्रीट करते हैं, तो उससे आपका क्विक लाइम मिल जाता है। तो आप लोग फर्नेस देख सकते होंगे, आपका कैल्साइनिंग है, अपनी स्क्रीन पे देखिए। अब आप लोग कैल्साइनिंग हो रही है और कूलिंग हो रही है, तो ये आपका लाइमस्टोन का ट्रीट कर रहे हैं और आपको फाइनली क्विक लाइम मिल रहा है। कल शाफ्ट किल देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही हैं। तो रोटरी नोट भी दिया हुआ है, एक रोटरी किल इज यूजुअली स्पेसिफाइड इंस्टेड ऑफ वर्टिकल शाफ्ट किल। तो ये आपका वर्टिकल शाफ्ट किल है जहां पर आपका कैल्साइनिंग होता है। और केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं, सिंपल केमिकल रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होता है और आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देता है। और बेसिस आपका 1 टन COA के लिए है, CO कैल्शियम ऑक्साइड के लिए लाइमस्टोन 1.87 टन्स और कोल 0.3 टन्स, एंड प्लांट कैपेसिटी इज 100 to 500 टन्स पर डे। तो बेसिकली आपका फर्स्ट फ्लो शीट में यही होगा आपका, कि आप लोग वर्टिकल शाफ्ट किल में आपकी कैल्साइनिंग हो रही है और आप लोग को क्विक लाइम मिल रहा है। तो एक तरह से आपका कैल्शियम कार्बोनेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। So I will read the process description। और सेकेंड प्रोसेस आपकी दी हुई है, वाटर के साथ हम लोग इसको मिक्स करके आप लोग स्लिकेट लाइम बना लेते हैं। तो यही क्विक लाइम में आप लोग वाटर मिक्स कर लेते हैं, और आप लोग देख सकते हैं पग मिल में आप लोग वाटर स्टीम मिक्स कर रहे हैं और आप लोग को स्लिकेट लाइम मिल रहा है। ओके, और उसके बाद आप लोग स्लिकेट लाइम बनाएंगे। तो ऑलरेडी दी हुई है इसमें आपकी, एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फ्लो शीट एक ही है आपकी 2K3 ये फ्लो शीट है, और आधे पार्ट का जो कि ये वर्टिकल शाफ्ट किल ने इसका डिस्क्रिप्शन अलग दिया हुआ है, और बाकी जो आप वाटर मिक्सिंग कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन अलग दिया हुआ है। तो पहले लोग देखते हैं कि क्विक लाइम कैसे बनता है। तो लाइमस्टोन इज क्वेरीड और मिक्स्ड एंड पुट ऑन कन्वेयर्स फीडिंग द मिल क्रशिंग यूनिट। तो पहले क्रशिंग आप देख सकते हैं, स्टार्ट में लाइमस्टोन जो है क्रशिंग यूनिट में जा रहा है आपका। Limestone of several sizes is produced with jaw or gyrate crushers used for hard rock and hammer or raw mills for soft rock. The size depends on the types of calciner as follows। तो जिस टाइप का कैल्साइनर होगा और उसी टाइप का आपको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। तो कैल्साइनर जैसे आपको वर्टिकल शाफ्ट है, मूविंग बेड है, रोटरी किल्न है, फ्लूइडाइज्ड बेड है। तो 4 टाइप के कैल्साइनर दिए हुए हैं, और
हम लोग यहाँ पर डायग्राम में वर्टिकल शाफ्ट किल्न देख रहे हैं। तो वर्टिकल शाफ्ट किल्न इज 3 to 8 मीटर इन डायमीटर एंड 10 to 25 मीटर हाई। तो ये वर्टिकल शाफ्ट किल्न आपकी 10 to 25 मीटर हाई होती है और 3 to 8 मीटर डायमीटर होता है। लाइंड विद रिफ्रैक्टरी ब्रिक एंड कवर्ड विद शीट स्टील आउटसाइड फॉर स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंशन ऑफ गैस लीकेज। तो ऑपरेशन ऑफ टू टाइप्स, अनमिक्स्ड एंड मिक्स्ड। अनमिक्स्ड में क्या होता है, कोल जो होता है वो एक सेपरेट कंबशन चैम्बर में होता है एंड फ्लू गैसेस सप्लाई द हीट फॉर कंबशन। और मिक्स्ड में क्या होता है, कोल इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन लम्प एंड सिंप्लीफाइज किल्न डिजाइन बट कोल ऐश इज एडेड टू प्रोडक्ट। तो मिक्स्ड में क्या होता है, कोल ऐश भी आ जाती है प्रोडक्ट में। So feed is from top of furnace where combustion gas preheats the stone as it gradually slides down the shaft into the calcining zone. This section of the kiln operates at 1000 to 1100 degrees Celsius. तो 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस पे आपका कैल्साइनिंग जोन होता है और आप लोग का कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है दैट डिकम्पोजेज एट 898 डिग्री सेल्सियस। The lime moves to the cooling section where heat exchange occurs between the secondary air and hot lime particles. एयर से यहाँ पर आपका सेकेंडरी एयर है उसके साथ कूलिंग होता है। After further cooling in a conveyor, the lime is either packaged as lump lime or crushed and screened to yield pulverized lime. Containers are jute bags with inner seal lining of polyester contact. तो जूट बैग होते हैं और उसमें अंदर पॉलिथीन की लाइनिंग होती है तो वैसे ही आप लोग यहाँ पर रोटरी किल्न भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका हम लोग को क्विक लाइम ऐसे मिल रहा है आपका। और आप लोग देख सकते हैं पाउडर्ड क्विक लाइम भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग उसको ट्यूब मिल ग्राइंडिंग में भेज देंगे तो आपको पाउडर्ड क्विक लाइम मिल जाएगा, या फिर आप लोग लंप क्विक लाइम ले लीजिए, पाउडर्ड क्विक लाइम ले लीजिए। तो ये यहाँ तक आपका जो है क्विक लाइम की प्रोसेस है। तो इट इज जस्ट ए डिकम्पोजिशन ऑफ योर limestone. Okay. So this is the first part of your flute and where you are getting the calcium oxide. It is you are basically calcining and with the help of air you are heating and further you are pulling and you are getting the lump quicklime and powdered quicklime. So this you can also use a rotary kiln. जैसे हम लोग ने सीमेंट में रोटरी किल्न यूज की थी वैसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं रोटरी किल्न। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका प्रोसेस फ्लोशीट का है। आपका कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 एंड इट्स डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इज 898 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए हम लोग का कैल्साइनिंग जो होता है वो 1000 हम लोग रखते हैं टेम्परेचर, 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कैल्साइनिंग करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रेटेड लाइम प्रोसेस। ओके, हाइड्रेटेड लाइम प्रोसेस अब है आपकी इसी फ्लोशीट में है आपकी। तो सेकंड पार्ट आपका यहाँ तक हम लोग पाउडर्ड क्विक लाइम तक हम लोग को मिल चुका है और अब हम लोग देखेंगे स्लेटेड लाइम कैसे मिलता है हमको। तो स्लेटेड लाइम का रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में जस्ट वाटर मिल जाएगा और आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो बेसिस है आपका क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट 1 ton of calcium hydroxide, quick lime is 0.787 ton and water is 0.242 ton and plant capacity is 50 to 100 tons per day. Okay. So next I will give the process description. तो
तो बेसिकली जस्ट आप लोग क्विक लाइम में वाटर लोग एक बार फ्लो शीट देख लीजिए, एक बार आप लोग पगमिल में भेज रहे हैं और स्क्रीन क्लासिफायर में भेज रहे हैं। ओके, तो पगमिल में आपका आप लोग वाटर और स्टीम ऐड करके साथ करने के साथ उसका साइज रिडक्शन कर रहे हैं, और स्क्रीनिंग जो होता है क्लासिफाइंग होता है, और वहां से आपको स्टिक्ड लाइन मिल रहा है। तो जस्ट एक बार फ्लो शीट आप लोग देख सकते हैं, आप लोग फ्लो शीट से समझ सकते हैं कि आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स कर रहे हैं, दैट गिविंग यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। So I will read the process description. Quick lime lump crushed to 2 centimeter or less is added along with water or steam to a vertical cylindrical plug mill containing 18 to 24 extended horizontal arms. Operation is usually continuous. तो ये पग मिल में है जो कि कंटिन्यूअस ऑपरेशन है। Product from complete reaction is light, dry, slated lime, which is classified by screen or is air separators and overburnt lime that hydrate. तो आप लोग तो जो इससे प्रोडक्ट है वो है, उसको आप लोग क्लासिफाई कर लेते हैं स्क्रीन क्लासिफायर से, और कोई भी आप लोग अनरिएक्टिव जो है लाइन को रिमूव कर देते हैं। The finely divided product is packaged in bags for shipping. Steam under pressure is used to more rapidly convert MgO, where dolomitic lime is used. This product is known as hydraulic lime. ये आपका हाइड्रोलिक लाइम है, और ये आपका दैट यू कैन से इज स्लेक्टेड लाइम। बेसिकली फ्लो शीट आप समझते हैं, कैल्साइनिंग कर रहे हैं और आप लोग को क्विक लाइम मिल रहा है, और आप लोग फिर उसके बाद ग्राइंडिंग कर रहे हैं और वाटर ऐड कर रहे हैं, स्क्रीन क्लासिफाई कर रहे हैं, आपको स्टिक मिल रहा है। नेक्स्ट इज मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। तो मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आपकी मेरे ख्याल से एक तो चॉइस ऑफ किल्न है, और दूसरी मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस। मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है किल्न में क्या होता है आपका, तो रोटरी किल्न आर फेवर्ड फॉर लार्ज प्रोडक्शन रेट्स ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। द डिग्री ऑफ कैल्साइनिंग इज मोर रेडिली कंट्रोल्ड। रोटरी किल्न में आपका कंट्रोल अच्छा होता है। Overburnt lime requires a higher temperature resistance time to produce partially fused unreactive calcium oxide MgO for refractory cells. This of overling is usually more easily controlled in a rotary kiln. तो आपका जो है रोटरी किल्न में आप लोग को अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। Conversely, lime for hydration must be consigned to a stage where all of the carbonate composed, leaving a porous solid structure, again requiring careful control. Beneficiated limestone slurry or precipitated calcium carbonate sludges as from ostracizing ammonium sulfate, paper and sugar plants can only be handled with rotary kilns. तो जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कुछ अमोनियम सल्फेट और इस होता है, तो दैट कैन ओनली बी हैंडल्ड इन रोटरी किल्न। वर्टिकल किल्न जो होती है वो आपकी थोड़ी कम कैपेसिटी के लिए यूज होती हैं। वर्टिकल किल्न्स आर बेस्ट अडेप्टेड टू स्मॉलर कैपेसिटी कैप्टिव टाइप ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल द सोडा ऐश इंडस्ट्री यूजेस अ मिक्स्ड फीड vertical shaft pressurized draft kiln since it yields highest concentration of CO2 with heat economy. The result of these alternatives is that greater than 70% of lime is manufactured in rotary kilns. तो हम लोग ने डायग्राम तो वैसे आपको वर्टिकल किल्न का दिया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो 70 किल्न होता है। Second major problem,
तो ये आपका होगा चॉइस ऑफ किल। सेकंड मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इज हीट ट्रांसफर, optimization of particle size, residence time, gas temperature, velocity profile, and heat economy in kilns. तो ये आपके हीट ट्रांसफर ऑपरेटर होते हैं किल्न में, दैट इज ए मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स ऑफ लाइम इंडस्ट्री। Lime production is very dependent on the steel industry, which in turn fluctuates directly with automobile. तो लाइम जो होता है वो डिपेंड करता है स्टील पे, क्योंकि लाइम का आप लोग ने देखा कि हम लोग स्लैग बनाने में यूज करते हैं स्टील इंडस्ट्री में, और स्टील इंडस्ट्री होता है वो ऑटोमोबाइल और हब यूज होता है। लाइम बीइंग एन एनर्जी निकल बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड टू मेक इट फ्रॉम लाइमस्टोन फ्लक्चुएट्स केमिकल्स। तो ये एनर्जी के प्राइस के साथ भी डिपेंड करता है, एनर्जी प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कैल्साइनिंग में हम लोग इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं, तो जितना आपका एनर्जी का प्राइस लगेगा उसके साथ भी ये फ्लक्चुएट होगा, इसका प्राइस भी हो जाएगी। ओके, सो ये आपका दिस मच इज योर लाइम इंडस्ट्री। तो हम लोगों ने मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स देखी, किल्न की चॉइस देखी हम लोगों ने, और किस तरह से आपकी किल्न होता है, और हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस आपका, और हम लोग ने देन वी सॉ द इकोनॉमिक्स। तो यहाँ तक थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, तो आप लोग को सब लोगों ने इतना इतना हो गया, सब लोगों का इकोनॉमिक्स तक सब लोगों ने सुन लिया था। मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक्स तक कंप्लीट हो गया था सबका। तो ये आपका, तो बेसिकली फ्लो शीट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपकी। अ,
तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्लो शीट। आप लोग यहाँ पर एक आप लोग वर्टिकल किल्न यूज कर रहे हैं, और उससे हम लोग लाइमस्टोन को पहले क्विक लाइम में बदल रहे हैं। दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्विक लाइम में बदल रहे हैं, और उसके बाद उसमें वाटर ऐड करके हम लोग स्लेकेड लाइम बना रहे हैं। दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और हम लोग यहाँ पर वर्टिकल शाफ्ट किल दिखाया हुआ है, लेकिन ज्यादातर आपका रोटरी शाफ्ट किल यूज होता है, क्योंकि उसमें बेटर हम लोग को हीट ट्रांसफर ऑपरेशन और बेटर कंट्रोल मिलता है, इसलिए हम लोग यूजुअली रोटरी किल यूज करते हैं। और उसके बाद आप लोग ट्यूब मिल ग्राइंडिंग के साथ पाउडर्ड क्विक लाइम ले सकते हैं या लंप क्विक लाइम ले सकते हैं, और हम लोग को फाइनली आप लोग को क्लासिफायर से आपको स्लेकेड लाइम मिल रहा है। So this is the process for getting limestone. We are converting uh, from limestone. We are getting the slaked lime or quick lime. We are getting. तो यही है आपका दिस मच इज फॉर लेक्चर नंबर 33।